Yes, let us see the numericals. From the chapter. I think we have done with this 21st one, right? So 22nd is to be done, right? So let us read carefully. I hope all of you can read the question. Yes, just read it carefully. Before the year 1900, the activity per unit mass of a activity of per unit mass of atmospheric carbon due to the presence of C14 averaged about 0.255 becquerel per gram of carbon. Okay, so what fraction of carbon atoms were of C14? Okay, so let us try to solve this first question. First of all, तो देखो ठीक से हमको क्या करना है. Yes, 1900 years ago, मतलब 1900 साल पहले एक्टिविटी जो है तो वो दिया हुआ है. अब देखो एक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ मेरे को. व्हाट इज एक्टिविटी? सी, एक्टिविटी इज नथिंग बट द rate of disintegration. करेक्ट है? रेट ऑफ disintegration which can be written as dn by dt. करेक्ट है? This is the activity. So we can just say this dn by dt is equal to lambda into n, where n stands for the number of nuclei, undisintegrated nuclei present at any instant. So you can just say activity at any instant is equal to lambda, that is decay constant, into number of nuclei, undisintegrated nuclei present at any instant. And even we can just use this formula, n is equal to n naught into e raised to minus lambda t. And this n naught, अब देखो activity at time t will be lambda into number of nuclei at time t again. बट एक्टिविटी, इनिशियल एक्टिविटी जो है, इनिशियल एक्टिविटी, इसको हम ए नॉट से डिवाइड करते हैं. दैट विल एक्चुअली बी इक्वल टू लैम्बडा इनटू एन नॉट आल्सो. तो जैसे हमारे पास ये वाला फॉर्मूला है एन और एन नॉट के बीच में जैसे रिलेशनशिप है, सेम वैसे ही हमारे पास ए और ए नॉट के बीच में भी रिलेशनशिप है. चलो ठीक है, इस एन को हम एन टी भी लिख सकते हैं, नो डाउट, और ए को सिंपली ए टी भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम. So AT, that means activity at any instant, is always equal to the initial activity multiplied by e raised to minus of lambda into that time after which this activity becomes AT here, like this. So this is actually the to be considered. Okay,
तो अभी इसमें एक बार चेक करो, यहाँ पे दिया हुआ क्या है, चेक करो एक बार, बिफोर 1900 ईयर्स, दैट मीन्स इट इज इनिशियली ना, तो इनिशियल उसको बोल सकते हैं हम वहां पे, ठीक है। और उस समय C14, अभी तुमको पता है ऑलरेडी कि C14 और C12 ये दो टाइप के कार्बन होते हैं, ठीक है। C14 जिसका एटॉमिक मास नंबर 14 होता है, और दूसरा C12 जिसका एटॉमिक मास नंबर 12 हुआ करता है। और उसमें से एक बात याद रखो कि C14 वाला जो कार्बन एटम है वो सिर्फ रेडियो एक्टिव है, this carbon is going to be radioactive, so it shows the radioactivity and emits the alpha beta gamma rays and reduces into C12, no doubt। तो ये होता है, और इसकी वजह से ही हम इसको यूज करके ही इसको कार्बन डेटिंग बोलते हैं, और इसको यूज करके हम किसी भी चीज का एज पता कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आप देखो, इनिशियल एक्टिविटी ऑफ C14 was given to be about 0.255 becquerel per gram. So if you consider 1 gram of carbon, then its activity is actually given to be 0.255 becquerel, and that is also initially, right? That means here A naught is actually given to be 0.255 becquerel, and becquerel means it is the number of disintegrations per second, which is a standard unit only. And also here in the last step, it is given that the half-life of carbon C14 is given to be 5730 years, 5730 years, ये हाफ लाइफ पीरियड दिया हुआ है। अभी चेक करो, अगर हाफ लाइफ पीरियड हमारे पास है, तो यूजिंग दिस हाफ लाइफ पीरियड can't we find out the lambda, that is decay constant, because we already have the relationship between these two, that is half-life period and lambda. So lambda is actually going to be equal to 0.693 divided by half life, करेक्ट है। ये अगर हम बात यूज करते हैं तो इससे हमको लैम्बडा मिल जाएगा तुरंत, मतलब decay constant of carbon 14 can be easily found out by just dividing this 0.693, तो इस 0.693 को डिवाइड करेंगे उसके हाफ लाइफ से, जो कि दिया हुआ है ऑलरेडी 5730 years. Keep it in years only, and the lambda will appear in per year. Okay, तो वो year inverse में ही आएगा, no doubt. It's okay because already ये जो 1900 जो टाइम दिया हुआ है, तो वो भी एक्चुअली years में ही है, no doubt. तो इसलिए लैम्बडा निकालने के लिए सिंपली हमको क्या करना होगा, we'll have to do this calculations. Yes, just do these calculations. 0.693 divided by 5730, okay, which happens to be, yes, 1.21 into 10 raised to minus 4. Yes, 1.21 into 10 raised to minus 4. So you can just copy it here. It's going to be 1.2421 into 10 raised to minus 4. Okay, this is your lambda. Okay, or yes, we can just keep this lambda as it is. ये जो इक्वेशन है, इसको हम as it is भी रख सकते हैं, no problem, and use it in the wherever we want to. Okay, now we can just use this equation, that is A naught, that is initial activity, is actually going to be lambda into number of nuclei initially present, correct है। तो अभी इसमें से हमको number of initial nuclei अगर present निकालना है, तो उसके लिए जरूर हमको ए नॉट को, मतलब इनिशियल एक्टिविटी को क्या करना पड़ेगा, लैम्बडा से डिवाइड करना पड़ेगा, जस्ट बिल्कुल सिंपल। सो इफ वी जस्ट कीप इट एज इट इज, देन वी कैन जस्ट गेट दैट दिस एन नॉट to be simply equal to a naught upon lambda. And what is a naught here? A naught is already given to be 0.255 becquerel, and if we just divide this by lambda, and lambda is nothing but 0.693 divided by 5730, ओके। तो ये अगर हम वर्कआउट करते हैं तो उससे हमको नंबर ऑफ न्यूक्लियाई मिल जाएंगे,
Yes, so it will be actually 0.255 divided by 0.693 multiplied by 5730. Okay. Yes, so just try to solve this. 0.255 divided by 0.693, which is going to be 0.3679. Yes, and that is to be multiplied by 5730, which becomes 20808. So 20108. Okay, so n naught is actually going to be 2108. बस हो गया, 4 डिजिट्स तक बहुत हो गया. ठीक है, so these are the number of undisintegrated nuclei present at that time. ठीक है, initially before 1900 years ago. ओके, लेकिन हमको नंबर ऑफ कार्बन एटम्स नहीं पूछा है. एक्चुअली हमको क्या पूछा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ कार्बन एटम्स वेर C14. ओके, तो देखो अभी इतने सारे जो कार्बन एटम्स है, ओके यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया एक्चुअली, क्योंकि ये जो है पर ईयर दिया है और ये बैक्वेरल में हमने यूज किया है. लैम्बडा जो है, सॉरी, हाँ, एक्टिविटी जो है वो एक्टिविटी हमने पर बैक्वेरल यूज किया है, बैक्वेरल में यूज किया है. ये जो है वो बैक्वेरल में है, जबकि यहाँ पे ये जो 5730 जो है वो ईयर में है, तो दैट विल नॉट बी डन. ओके, सो वी विल हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू सेकेंड्स. यस, सो अभी यहाँ पे ये जो 5730 ईयर्स है, तो इस ईयर को सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए हमको पता है ऑलरेडी कि we can just multiply this by 365, that is the number of days in a year, and again multiply this by number of seconds in a one day, that is nothing but 8886400. करेक्ट है, तो ये हमको वर्कआउट करना होगा. that means simply we will have to multiply this 2108 by this 365, and then again we will multiply this by 3864, no doubt, because this is going to be in years. तो years का जो conversion है ये हमको करना पड़ेगा अभी, तो इसलिए फिर okay, so let us do that. This multiplied with 365. Okay, so this will be multiplied by 365, which comes out to be this much, and it should be again be multiplied by 86400, which happens to be this much. Just note this down, 6.649. क्योंकि देखो यहाँ से अगर हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट हमको पॉइंट पीछे लेके जाना पड़ेगा. That then we'll get this 6.65 approximately. So let us do this and write it here. So this should be actually multiplied with 365 and again with 86400, so as to get this n naught as 6.4565. okay, this is 6.65 multiplied by 10 raised to 10. समझा ठीक से? यस, ये देखो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ओके, तो 10 डिजिट्स हमको यहाँ पे पीछे लेके जाना है पॉइंट को, तो इसलिए यहाँ पे 10 raised to 10 आ जाएगा. So these are the many number of nuclei present initially before 1900 years ago. Okay, that were the nuclei of C14. करेक्ट है,
तो ये C14 के नंबर ऑफ न्यूक्लियर रहेंगे। लेकिन इसमें अभी एक बात चेक करो कि अगर हम देखेंगे ठीक से, तो कार्बन के अंदर कितना फ्रैक्शन C14 था वो हमको ढूंढ के निकालना है एक्चुअली। अभी देखो ठीक से, यस, सो दीज आर द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ कार्बन C14। तो कार्बन C14 के कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हमको मिल रहे हैं यहाँ पे, देखो कार्बन C14 के नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है 6.65 इंटू 10⁻10। ओके, बट अभी देखो चेक करो, 1 ग्राम कार्बन के अंदर कार्बन 12 के कितने न्यूक्लियाई हुआ करते हैं, कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई मतलब हो सकते हैं कार्बन के, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी इट इज गिवन दैट देयर इज 1 ग्राम कार्बन एटम, मींस पर ग्राम दिया था ना उन्होंने, पर ग्राम। तो पर ग्राम का मतलब ये है कि वी हैव टू अज्यूम दैट 1 ग्राम ऑफ कार्बन एटम इज कंसिडर्ड हियर। सो 1 ग्राम कार्बन एटम के अंदर कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हुआ करते हैं। देखो ये तुमको पता है कि जबकि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई और नंबर ऑफ एटम्स इज ऑलवेज इक्वल टू, ये तुमको पता होगा, नंबर ऑफ मोल्स का जो कंसेप्ट है, नंबर ऑफ मोल्स कैन बी फाउंड आउट टू बी सिंपली इक्वल टू number of nuclei, number of atoms upon Avogadro's number, and this also can be written to be mass upon the molar mass, right? तो ये हमको समझना है। तो इससे हमको क्या मिलता है कि नंबर ऑफ एटम्स कैन बी फाउंड आउट जस्ट बाय यूजिंग दिस टोटल इक्वलिटी। सो इसमें अगर एवोगाड्रोस नंबर उस तरफ डाल दो तो नंबर ऑफ एटम्स कितने मिलेंगे हमको, एवोगाड्रोस नंबर इनटू मास अपॉन मोलर मास, दैट्स इट। तो ये फॉर्मूला हमको यूज करना है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई फाइंड करने के लिए या नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ कार्बन 12 1 ग्राम के अंदर, तो वो रहेगा n इज इक्वल टू एवोगाड्रोस नंबर जो कि 6.023 इंटू 10⁻23 एंड दैट इज मल्टीप्लाइड विथ mass of the carbon atom which is going to be 1 gram, right? And that is to be divided by molar mass of that carbon atom, that is 12 gram, correct है। so ये हमको वर्कआउट करना है। so how many number of nuclei we get here is simply, तो इस 6.023 को 12 से डिवाइड करना, ये हमको करना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना आएंगे देखो, so we get is as 6.023 divided by 12 which comes out to be 0.5019 और 502 लोग पकड़ लो उसको, 0.502, okay। so here it is going to be 0.502, okay, and that is multiplied with 10⁻23 kept as it is, right? so here this is going to be 10⁻23 which is the number of total nuclei of carbon atom possible in 1 gram, right? so 1 ग्राम के अंदर इतने नंबर ऑफ न्यूक्लिया हो सकते हैं। देखो अगर ये तुमको समझ में नहीं आया ये कैसे हमने किया, तो ये इतना समझ के लो कि अभी देखो 12 ग्राम कार्बन एटम, ठीक है, सॉरी हाँ, 12 ग्राम कार्बन एटम contains number of Avogadro's number of nuclei or atoms, right? 12 gram carbon atom contains 1 mole. 1 mole means 6.023 into 10⁻23 numbers of atoms, right? So how much 1 gram carbon atom will contain? How many nuclei will be contained in 1 gram carbon atom then? अगर 12 ग्राम के अंदर इतने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है तो फिर 1 ग्राम कार्बन के अंदर कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे, तो वो निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जितना भी कार्बन एटम्स नंबर एक 12 ग्राम के अंदर होते हैं उसको हमको डिवाइड करना पड़ेगा 12 से, क्योंकि 12 ग्राम के अंदर इतने होते हैं ना, तो हमको 1 ग्राम का निकालना है। तो 1 ग्राम निकालने के लिए इस जितना भी 12 ग्राम के अंदर होता है उसको हमको 12 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा और 1 पार्ट कंसिडर करना पड़ेगा। यही तो हमने किया है, ये देखो यहाँ पे ये जो नंबर है इसको हमने 12 से डिवाइड किया तब जाके हमको ये मिल रहा है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन 1 ग्राम कार्बन एटम। इसको क्या बोलने का, देखो ठीक से, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन 1 ग्राम कार्बन एटम, 1 ग्राम 12 कार्बन एटम 12, जिसका एटॉमिक मास नंबर 12 हुआ करता है, ठीक है।
बट अभी उस 1 ग्राम कार्बन एटम के अंदर 14 वाले नंबर ऑफ न्यूक्लिया कितने थे, ये देखो इतने थे। तो ये अगर हम ये यहाँ पे यूज करेंगे, ये 10 है, भूलो मत, ठीक है। तो अभी यहाँ पे 14 का 14 एटॉमिक मास नंबर वाले न्यूक्लिया कितने थे, 6.65 इंटू 10⁻10 इतने थे। और मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ न्यूक्लिया हो सकते हैं 1 ग्राम कार्बन एटम के अंदर, 12 जिनका एटॉमिक मास नंबर है वैसे, तो वो 0.502 इंटू 10⁻23 इतने नंबर ऑफ न्यूक्लिया हो सकते हैं। So we are found to ask to found how many fraction of this carbon 14 are there in 1 gram. तो 1 ग्राम के अंदर कितने फ्रैक्शन में ये होते हैं 14 वाले न्यूक्लियाई है। तो वो निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सिंपली we have to divide this n naught by n which is obtained here। मतलब यहाँ पे जो हमने निकाला है इनिशियली n naught, इसको हम बोल सकते हैं that is the number of nuclei present in 1 gram of carbon atom of this 14 mass number। तो ये हमको डिवाइड करना है इसको, इस पूरे को, जो कि नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई दैट इज पॉसिबल इन 1 ग्राम इन दिस वे। तो इसलिए फिर यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ये आएगा 0.502 इंटू 10⁻23 डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में क्या आएगा लिक्विड से, ये आएगा 6.02, नहीं सॉरी, ये वाला आएगा 6.0265 into 10⁻10। okay, so this is 6.65 into 10⁻10। so this fraction happens to be actually about, तो ये फ्रैक्शन अगर निकालेंगे ठीक से तो कितना बनता है, देखो ठीक से, ओके 6.65 डिवाइड बाय 0.502, okay, which comes out to be 14 एटॉमिक मास नंबर के इतने सारे न्यूक्लियर होंगे। इसमें चेक करो, मैं कुछ गड़बड़ नहीं किया ना, ओके okay. ओके ठीक है ना, लेट अस राइट डाउन दिस नंबर हियर, 13.24, but don't forget that that is accompanied by 10 raised to this minus 13 here, okay, 10 raised to minus 13, yes, which can also be written as 1.324 into 10 raised to minus 12 only, which can be written as, ओके और वहां पे क्या दिया है उन्होंने, चेक करो यहाँ पे ठीक से, आंसर में क्या दिया देखो, 4 एटम्स इन एवरी 3 into 10 raised to 12 कार्बन एटम्स,
where C14. Okay, हाँ तो वही हो गया ना. देखो actually if they are saying that 4 atoms in every 3 into 10 raised to 12 carbon atoms, तो मतलब रेशियो कितना हो गया? 4 atoms in every 3 into 10 raised to 12 carbon atoms. करेक्ट है? तो ये रेशियो कितना हो गया? चेक करो एक बार ठीक से. सो ये 10 raised to 12 ऊपर जाएगा तो 10 raised to -12 हो जाएगा, और ये 4/3 क्या बनेगा? 1.33 रिकरिंग बनेगा. सो इट्स ओके ना. सो 1.3 इंटू 10 raised to -12, ये रेशियो और ये जो हमने फाइंड किया रेशियो, क्या डिफरेंस है? सेम ही तो है, नो डाउट. सो इसलिए वी कैन जस्ट से दैट दिस विल बी द फ्रैक्शन. अभी उन्होंने फ्रैक्शन पूछा है तो हम फ्रैक्शन ही निकालेंगे ना. तो ये तो उन्होंने और आगे जाके वो बात की है कि 4 आउट ऑफ 3 इंटू 10 raised to 12, बट वी कैन नॉट फाइंड आउट दिस एज अ डेसिमल. मतलब डेसिमल हमको मिलने वाला है एक्चुअली. ये हम ऐसा नहीं निकाल सकते 4 आउट ऑफ 3 टू 10 raised to 12. वो तो चलो ठीक है, आंसर कंपेयर करने के लिए इट्स ओके, वी कैन जस्ट कंपेयर इट by taking the ratio of 4 to this 3 into 10 raised to 12 and just comparing this with this we have got here. So and finding that they are correct, they are same. Okay, but the final answer will be this much actually. ठीक है, तो यही हमारा फाइनल आंसर होना चाहिए. 1.324 into 10 raised to -12. This is the fraction of number of nuclei of C14 which are present in 1 gram. Okay, chalo, let us see the second part of the same question, that is B. An archaeologist specimen containing 500 milligram of carbon. It shows 174 decays in 1 hour. Then what is the age of that specimen, assuming that the activity per unit of carbon atom when the specimen died was equal to the average value of air. अच्छा, ठीक है, इसका मतलब हमको ये दिया हुआ है कि yes. So see here, an archaeologist specimen containing 500 milligram of carbon shows 174 decays in 1 hour. Okay, तो इसमें देखो क्या क्या दिया हुआ है हमको. सबसे पहले तो ये दिया हुआ है कि मास ऑफ कार्बन एटम, और मास ऑफ कार्बन इज गिवन टू बी 500 milligram. Okay, so we can just call it as 0.5 into 10 raised to नहीं, हाँ 0.5 ग्राम. करेक्ट है. 500 milligram मतलब 0.5 gram. Okay, so this is the mass of carbon which is given here, and also it is given that it shows 174 decays in 1 hour. So what does it gives? 174 decays in 1 hour मतलब number of decays per second per unit time. मतलब ये तो activity हो गया. So we can say that the activity A here it is given to be 174 decays per hour. तो वो अगर हमको देखो decays per hour में है ना वो, तो इसको अगर हमको सपोज डिके पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आर को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 3600 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बट वो तो डिनोमिनेटर में ऑलरेडी आर, तो इसलिए इसको यहाँ पे 174 डिवाइडेड बाय 3600 एंड दैट विल बी इन डिके पर सेकंड. एंड डिके पर सेकंड मतलब ही क्या होता है? बैकवर्डल होता है. तो उसको हम बैकवर्डल में इस तरह से लिख सकते हैं 174 डिवाइडेड बाय 3600 बैकवर्डल. ओके, and then it will be the activity of carbon in this way. Okay, अभी हमको ये निकालना है कि what is the age of specimen. Okay, तो अभी देखो हमको एज ऑफ स्पेसिमेन निकालना है, मतलब कितना समय पहले वो मरा होगा, तो वो हमको उसमें से निकालना है. Assuming that its activity per unit mass of carbon when the specimen died was equal to the average value in air. Okay, और ये एवरेज वैल्यू कितना दिया है? ये देखो ये दिया हुआ है 0.0255 becquerel.
ये जो है वो एवरेज वैल्यू है पर ग्राम का, ठीक है, और एक्टिविटी, जबकि यहाँ पे ये जो हमको एक्टिविटी मिला है वो उससे कम होगा, ठीक है। तो उससे हमको ये निकालना है कि उसका मर के मतलब मरने के बाद कितना टाइम हो गया, तो उससे हमको वो एज मिल जाएगा उसका, ठीक है। मतलब हमको टाइम ढूंढ के निकालना है इन शॉर्ट, करेक्ट है। बट इसमें ये भूलो मत कि ये एक्टिविटी जो है वो 0.5 ग्राम कार्बन का है, ठीक है, जबकि ये जो है ये पर ग्राम का है। 0.255 बेक्यूरेल जो है वो पर ग्राम का होता है, मतलब 1 ग्राम कार्बन एटम कार्बन का होता है। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि यहाँ पे जो ये जो एक्टिविटी हमको यहाँ पे हमको दिया हुआ है, तो वो अगर 0.5 ग्राम का है, तो लेट अस फाइंड आउट द एक्टिविटी ऑफ 1 ग्राम कार्बन एटम, चलेगा। देखो एक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ undisintegrated nuclei. Number of nuclei is actually proportional to the mass, in short. So can't we say that this activity is also proportional to the mass? So in short, what can we do is activity of 174 upon 3600 becquerel corresponds to 0.5 gram. So how much will be the activity of 1 gram then? You can find out to be इसको बोलेंगे for 0.5 ग्राम, ओके। सो 1 ग्राम का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको डबल करना पड़ेगा। अगर इसको डबल करेंगे तो क्या होगा, 2 और ये 3600 सिंपली कैंसिल हो जाएगा और हमको वहां पे सिंपली 1800 मिल जाएगा, दैट्स इट। सो वी कैन जस्ट से इट विल बी 174 डिवाइडेड बाय 1800 becquerel फॉर 1 ग्राम, करेक्ट है। ये 1 ग्राम का एक्टिविटी हो गया, ठीक है। वी कैन फाइंड इट आउट 174 divided by 1800. Yes, it is 0.0966. Okay, so activity here will be 0.09667. Okay, so this is the activity of 1 gram, but this is the final activity, whereas initial activity of 1 gram is actually given to be 0.255. just see it here, यहाँ पे जो दिया हुआ है नहीं, यहाँ पे ये देखो, ये जो है वो इनिशियल एक्टिविटी है, तो उसको हम लिख सकते हैं 0.255 becquerel. Okay, this is also in becquerel and this is also in becquerel, no problem. Now we can just compare these two and get the time. Okay, so according to the relationship between these two, that is A is equal to A naught into e raised to minus lambda t. इसमें से हमको t निकालना होगा और लैम्बडा तो ऑलरेडी पता है, हमने लास्ट स्क्रीन में निकाला था लैम्बडा का वैल्यू, राइट। सो विल जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट। एंड ये इक्वेशन जो है वो अगर तुमको लॉग के फॉर्म में चाहिए तो वैसा भी कर सकते हो। लॉग के फॉर्म में कैसा मिलता है ये इक्वेशन, तो देखो टाइम टी कैन बी रिटन टू बी इक्वल टू, ये देखो 2.030 आता है यहाँ पे, बिकॉज वी वांट टू कन्वर्ट द लॉग from to the base e to the base 10, so 3.303 upon lambda into log of initial activity, that is a naught, upon final activity, that is at or simply a। ओके, तो ये फॉर्मूला है। तो इसके अंदर अगर हम सारे वैल्यूज डाल देंगे तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाय लैम्बडा। जस्ट चेक व्हाट इज लैम्बडा फ्रॉम द लास्ट स्क्रीन। See here, lambda was found out to be this much. Okay, we can just keep it as it is. Okay, but that is in per year, no? Yes. Okay, okay, ठीक है। If you want the answer in years only, then we can just use this value of lambda directly. यही वैल्यू हम यूज कर सकते हैं लैम्बडा का, जो कि 0.693 अपॉन 5730 है। ओके, सो we'll get the answer in years only and it's okay, we can just have it in years only. तो लैम्बडा का वैल्यू यहाँ पे हमने डाल दिया जो कि 0.693 है अपॉन
5730. Okay, and that is multiplied with log of initial activity, which is here 0.255. Okay, so this is 0.255 to be divided by the final activity, which is going to be here 0.096667. Okay, so 0.09667. Okay, and this is to the base 10, no doubt. So it will be to 2.303 into 5780, sorry, 5730 divided by 0.693 and multiplied with log of this number here. तो अभी देखो log इस नंबर का निकाल के देखो फटाफट. यस, तो ये नंबर कितना आ रहा है आप पहले चेक करो. 0.255 डिवाइड बाय 0.09667. check, so it comes out to be 2.6378. okay, so it is going to be 2.6378. yes, so we get this t is equal to, अच्छा ये भी कर दो फटाफट, कितना आ रहा है, नहीं तो ठीक है रखो उसको ऐसे ही. 2.303 into 5730 divided by 0.693 into log of this number to the base 10. अभी उसके लिए हमारे पास log table होना चाहिए. just use the log table to find out the value of log of 2.638 ले लो उसको, चलो ठीक है. approximately it will be 0.638. 78 को डायरेक्ट 8 कर दो, नो डाउट. तो 26 का हमको देखना होगा 3 में और मीन डिफरेंस 8 में. तो देखो 26 का 3 में मिल रहा है 4200 और उसका मीन डिफरेंस 8 में जो मिल रहा है 13, राइट. सो 4213. yes, so it will be 4213. and as we know that this 2 point मतलब डेसिमल पॉइंट के पहले एक ही डिजिट है, तो यहाँ पे 0 आएगा. 1 - 1 मतलब 0 आएगा. तो 0.4213 ये हमको मिल गया. अभी हमको ये सारे वर्कआउट करना है, कैलकुलेशंस नहीं करना है. तो लॉग टेबल अगर यूज करेंगे तो ये 2.303 यहाँ पे हमको कैलकुलेशन में यूज करना पड़ेगा. 2.303 मल्टीप्लाइड बाय 5730 again multiplied by 0.4213. so it is 0.4213 and that is divided by, okay, it is divided by 0.693. yes, so this is 0.693 which finally comes out to be 8022. okay, so it's going to be 8022, and don't forget that that is going to be in years because we have already taken this 5730 also in years, and hence this is going to be actually the final answer. Just check, it's okay. 8020 years. ठीक है, 2 साल का सिर्फ फर्क आ गया. It's okay. 8020 years. चलो do the next one. yes, how much mass of uranium 235 is required to undergo fission each day to provide 3000 megawatts of thermal power. okay, तो देखो ठीक से एक्चुअली ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि how much mass of uranium 235 is required to undergo fission each day to provide 3000 megawatt of thermal power and average energy per fission is given. okay, so देखो what is the average energy per fission.
वी कैन कॉल इट एज एनर्जी पर फिजन। एक फिजन में हमको कितना एनर्जी मिल रहा है, तो वो दिया हुआ है यहाँ पे, इट इज 202.79 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मेगा मेगा का मतलब क्या होता है, 10⁶, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज करेस्पॉन्डिंग टू 1.6 into 10⁻⁻19 जूल। तो दिस मच ऑफ एनर्जी विल बी ऑब्टेन्ड यूजिंग वन फिजन। तो उसको हम लिख सकते हैं 2.028 अप्रोक्सीमेटली इंटू, अब यहाँ पे 2 जीरो इधर से आगे आए तो 10⁻² आ गया, तो वो 10⁻² इंटू 10⁻6 कितना बन गया, 10⁸8 इधर बन गया, और वो 8 माइनस 19 कितना बन रहा है, तो वो 10⁻11 आ जाएगा इधर, करेक्ट। तो 10⁻11 एंड दैट इज गोइंग टू बी इन जूल्स। ओके, सो दिस इज द एनर्जी इन वन फिजन। चलो ठीक है, नहीं तो एनर्जी को ई बोल देंगे, ठीक है। एक फिजन में से इतना एनर्जी हमको मिल रहा है यूरेनियम के, ठीक है, मतलब एक एटम जब फिजन होता है तो इसमें से उतना एनर्जी मिलता है। ओके, बट हाउ मच एनर्जी वी वांट, 3000 मेगावाट, इतना पावर हमको चाहिए, और वो भी एक दिन में। तो द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड, वी कैन फाइंड आउट हाउ मच एनर्जी नीडेड। Yes, so the total amount of energy needed will be 3000 megawatt. Mega मतलब क्या, it will be multiplied by 10⁶, but that is watt. watt मतलब क्या, जूल पर सेकेंड। तो एक सेकेंड में हमको इतना पावर चाहिए, तो एक दिन में कितना मिलेगा हमको, तो एक दिन में हमको उसके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नंबर ऑफ सेकेंड से। एक दिन में कितने सेकेंड्स होते हैं, 86400 इतने सेकेंड्स होते हैं। So this much is the energy of, needed in 1 second, and this is the number of seconds. So this will be the total amount of energy needed in a day. Okay, पूरे दिन भर के अंदर हमको इतना एनर्जी चाहिए, क्योंकि उन्होंने देखो क्या पूछा है, हाउ मच मास ऑफ यूरेनियम इज रिक्वायर्ड टू अंडरगो फ्यूजन ईच डे। ओके, हर दिन, एक दिन भर का हमको मास निकालना है, यूरेनियम कितना एक दिन भर में कच्चा होगा वो हमको चाहिए। ओके, तो दिस इज द एनर्जी नीडेड एंड दिस इज द एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम वन फ्यूजन। Okay, so what we have to do is, the number of uranium nuclei can be obtained how many number of nuclei are required। तो उसके लिए हमको ये करना होगा कि energy needed is to be kept in the numerator। जितना एनर्जी हमको चाहिए वो हमको न्यूमरेटर में रखना पड़ेगा, और एनर्जी ऑफ वन फिजन, एक फिजन में से जितना हमको एनर्जी मिलता है तो वो हमको डिनोमिनेटर में रखना पड़ेगा इधर। तो अभी देखो एनर्जी नीडेड कितना है हमारे पास, वो है 3000, नहीं तो उसको सभी 10 के पावर्स जो है वो कलेक्ट कर दो, और ये 3 को भी 864 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो कितना मिलेगा। सो 864 मल्टीप्लाइड बाय 3 which comes out to be 288, करेक्ट है। सो यू कैन राइट इट एज 2.88, करेक्ट है, 2.88 इंटू 10⁻², ऐसा लिख सकते हैं उसको, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे, यहाँ पे ही लिख देंगे आगे चाहिए तो, ये तो ठीक है, 288 इंटू कितना मिल रहा है ये 10⁻6, एंड दिस इज, and this is 10⁻6, and these are 3 zeros and here these are 2 zeros, तो टोटल हो गया 5 और 6 मतलब 11 जीरोस। तो ये 10⁻11 तो इधर ही आ गया, और इसको अगर हम 288 तो 2.88 करके लिखेंगे, तो 2.8 into 10⁻13 will be there in the numerator. And what about in the denominator? The energy obtained by one fusion, which is going to be 2.028. So this is 2.028 into 10⁻⁻11, which happens to be, तो अभी ये अगर हम वर्कआउट करेंगे देखो तो क्या होगा, 2.88 divided by 2.028,
yes, which comes out to be 1.42. Okay, so this is 1.42 into 10 raised to, yes, 24. Okay, so 24. These many number of nuclei will be required in a day. ओके बट अभी इसमें हमको मास कितना पूछा है ना, मास, तो मास और नंबर ऑफ न्यूक्लियाई में क्या रिलेशनशिप होता है वो तो ऑलरेडी हमको पता है, बिकॉज वी नो द मोल कंसेप्ट. मोल कंसेप्ट क्या कहता है, मास अपॉन मोलर मास इज गोइंग टू बी इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई और नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एवोगाड्रोस नंबर. ओके, तो मास कैन बी फाउंड आउट जस्ट बाय ट्रांसफरिंग दिस मोलर मास इन दैट साइड. करेक्ट है, तो इससे हमको मिलेगा मास इक्वल टू molar mass upon Avogadro's number into number of nuclei which are consumed. तो इसलिए फिर यहाँ पे हमको मिलेगा mass of uranium whose mass number is 235 will actually be equal to molar mass of uranium which is going to be 235. करेक्ट है, 235 ये molar mass हो गया, divided by number of Avogadro's number which is simply 6.023 into 10 raised to 23, right? And that is to be multiplied by the number of nuclei which are used here, which is 1.42 into 10 raised to 24. So you can just multiply this together here, 1.42 into 10 raised to 24. Okay, this comes out to be actually 235 into 1.42 divided by 6.023 and that is to be multiplied with ये 23 ऊपर जाके -23 बनेगा और simply 10 बचा रहेगा यहाँ पे, right? So we can just get the mass of uranium to be simply by working out this whole thing here. So see 235 multiplied by 1.42 and that is to be divided by 6.023 which happens to be 55.4 into 10 also. Okay, so don't forget that. So here it is going to be 55.4 into 10 which happens to be 554 kilogram. Okay, किलोग्राम या ग्राम, ये 235 किस में था, ग्राम में था, right? So it will be in gram only. So 554 gram. Okay. Okay. चेक करो कुछ मिस्टेक तो नहीं किया ना हमने. अच्छा, यहाँ पे हमने गड़बड़ किया है, देखो ये जो है 1.6 से मल्टीप्लाई किया ही नहीं उसको. यस, 2.028 into 10 raised to 2 और ये 8 बन गया 8 6 बन गया 8 और 8 minus 19 बन गया -11, वो तो करेक्ट है, बट ये 1.6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना इसको. So if you do that, then here it will be 2.028 multiplies with 1.6. So it comes out to be 3.245 approximately 3.245. Okay, so it will actually be
3.245. Okay, and that will be used here in the denominator here. तो ये भी हमको करेक्शन करना पड़ेगा. Okay, it will be 3.245. okay, and then अब ये भी बदल जाएगा फिर. Let us do it here. 2.88 multiplied by, no, sorry, divided by 3.245. Yes, 3.245. okay, so it comes out to be 0.8875. so here इसके बदले क्या आने वाला है, 0.8875 आने वाला है. okay, so this is 0.8875 and this is to be used in the numerator here in place of this number. okay, तो ये हटा दो और उसके बदले डाल दो 0.8875. yes, here also बाकी 10 के पावर्स हमने करेक्ट किए हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, but this is 0.8875. okay, and then now we'll just work this out. so अभी देखो फिर से ये करेंगे एक बार. तो 235 multiplied by 0.8875 and that is to be divided by 6.023. okay, 6.023. this comes out to be 34.62. right, अभी करेक्ट आएगा वो. so it is here. and this 10 also, don't forget this 10 here. तो 34.62 into 10. फिर से एक डेसिमल डिजिट का प्रॉब्लम हो रहा है. अरे यहाँ पे अरे ये वापस गलत हो गया शायद. 3 into 864 कितना आता है, चेक कर एक बार. 864 multiplied by 3, it comes out to be 2595.92. ये तो हमने किया ही नहीं.
तो ये कैसे किया हमने? टू 259592 आना चाहिए यहाँ पे। Energy needed will be actually 2592 and that is multiplied with ये 3 zeros, ये 6 zeros 10⁻⁹ हो गया और ये 2 zeros मतलब वो 10⁻11 हो गया, करेक्ट है? तो ये 10⁻11 तो बराबर है, but it will be 2592 here, so just make it correct. Energy needed जो है वो भी एक्चुअली बनेगा 2592 and that is multiplied by 10⁻11 only. ठीक है, जस्ट वर्क इट आउट। सिर्फ कैलकुलेशन में थोड़ा मिस्टेक हुआ है, बाकी कंसेप्ट वही है, कंसेप्ट उनको वही करना है एक्चुअली। एक एक फ्यूजन का एनर्जी जो दिया हुआ है तो उसका रेशियो लेना है और एनर्जी जो हमको नीडेड है तो उसको हमको एक फ्यूजन की एनर्जी से डिवाइड करना है। ये जो हमने यहाँ पे किया ना वही करना है, सिर्फ यूनिट्स चेंज करने हैं, सेम यूनिट में उसको लेके आना है। और वंस वी गेट द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय molar mass and divided by Avogadro's number so as to get the total mass of uranium. Okay, बाकी ये तो 11th स्टैंडर्ड का सम है, ये तुमको आराम से आ जाएगा। लास्ट वाला जो दिख रहा है देखो, ठीक से इन पीरियोडिक टेबल एवरेज एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम इज गिवन एज 24.312 atomic mass unit. The average value is based on their relative natural abundance on Earth. The three isotopes and their masses are 24 वाले मैग्नीशियम का दिया हुआ है, 25 वाले का भी दिया हुआ है, 26 वाले का भी दिया हुआ है। And natural abundance of 24 is 78.99% by mass. Then calculate the abundance of other two isotopes. Okay, तो उसके लिए याद रखो ठीक से कि एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकाला जाता है। Average atomic mass is calculated by considering the abundance multiplying by the average atomic mass of first atom multiplied by its abundance. Suppose it's x%, ठीक है, x% उसको बोल सकते हैं, प्लस सेकेंड वाला जो है m2 उसको हम बोल सकते हैं, and that is multiplied with its abundance 5% we can say, and the third जो भी होता है तो उसका m3 बोल सकते हैं, उसका मास नंबर, और उसको मल्टीप्लाई करना है z% से, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन का दो आइसोटोप्स होते हैं, एक होता है 35 और दूसरा होता है 37, करेक्ट है। तो अभी इसमें से क्या है ना कि क्लोरीन 35 जो है वो कितना मिलता है हमको, 75% मिलता है, करेक्ट। और 37 वाला जो क्लोरीन है वो कितना मिलता है, वो हमको मिलता है 25%, मतलब ज्यादा 35 वाला क्लोरीन मिलता है। तो इसलिए इन दोनों का जो ये है मोलर मास है, एवरेज मोलर मास कैसे निकालते हैं, तो 35 वाला क्लोरीन जो है उसका एटॉमिक मास नंबर 35 मल्टीप्लाइड बाय 75% विच इज नथिंग बट 0.75, करेक्ट है। 75 upon 100 मतलब 0.75 प्लस it will be 37 and that is to be multiplied by 25% means it is 0.25 and we just have to add these two numbers by calculation. तो अगर ये करेंगे तो 35 multiplied by 0.75 प्लस, अच्छा ये कितना आता है देखो ठीक से, it comes out to be 26.25, right? So this is 26.25 and this is to be added with 37 into 0.25 which is nothing but, to see here, 37 multiplied by 0.25, okay, it is 9.25, so here it is 9.25 and now if we just add these two up, so ये 9.25 plus 26.25, how much it's add up to, so 35.5 which is nothing but the average atomic mass of chlorine we must be knowing, ठीक है। तो ये जो 35.5 होता है एवरेज एटॉमिक मास क्लोरीन का, वो इस तरह से निकलता है। दैट मींस वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस mass by its abundance and this mass by its own abundance,
बट उसमें से कभी कभी क्या होता है ना कि एक एक का अबेंडेंस दिया जाता है 75% सपोज दिया हुआ है, दूसरे का नहीं दिया है, तो वी कैन जस्ट कैलकुलेट इट बाय 100 माइनस एट 75%, तो वो उसका अबेंडेंस हो गया। ठीक है, तो ये हमको याद रखना है कि अगर दूसरे का नहीं दिया है, एक का नहीं दिया है, बाकी सबका दिया है, तो 100 माइनस जो करेंगे वो तो वो तीसरे का रहेगा, बचे हुए का। अभी यहाँ पे इसको अगर सॉल्व करेंगे तो देखो मास, एवरेज मोलर मास ऑफ द मैग्नीशियम इज टू बी फाउंड आउट, and that is actually given here. Periodic table में average atomic mass of magnesium is given as 24.314, that is given. Okay, and first one जो है, फर्स्ट वाले का कितना दिया है, देखो 24 वाले का दिया हुआ है 78.99%, दैट मीन्स देखो ये 24 यहाँ पे डाल देंगे और उसका अबेंडेंस कितना है 0.7899। ओके, परसेंटेज में उसको 100 से डिवाइड करके हमने वो कैलकुलेट कर दिया। ओके, प्लस अभी दूसरे का हमको पता नहीं है, अच्छा, लेकिन उसका 24 वाला जो है ना, उसका एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास भी अलग है, देखो 23.98504 है एक्चुअली, तो वो हमको वो भी करेक्शन करना है। तो दिस शुड नॉट बी रिटन एज 24 एज अ राउंड फिगर, बट वी हैव टू यूज इट एज so 23.9805. okay, so this is 9805, that is to be multiplied with this abundance plus अभी मास ऑफ सेकेंड कितना है 25 वाले का हमको पता नहीं है, और 26 वाला भी है, उसका भी पता नहीं है। तो लेट अस अज्यूम दैट 25 वाले का जो ये है अबंडेंस है y जो है, तो उसको हम y बोल देंगे चलो, और ये जो z है तो वो एक्चुअली 100 माइनस y होगा, करेक्ट है ना, क्योंकि नहीं सॉरी, एक बात याद रखो ठीक से कि x प्लस वाई प्लस जेड विल एक्चुअली बी इक्वल टू 100, इतना तो समझ सकते हो। तो इसलिए m2 जो है, m2 मतलब 25 वाला, तो उसका एटॉमिक मास नंबर दिया हुआ है 24.9858। ओके, 24.9858, and that is multiplied with its abundance, which we can assume it as y upon 100, right? नहीं तो ठीक है, y ऐसा करो, y अपॉन 100 जो बनता है उसको ही y कंसिडर कर लो, मतलब जो भी उसका अबंडेंस है वो डेसिमल में y है सपोज, ठीक है, और प्लस थर्ड जो ये है 25.9826, ओके 25.9826, and that should be multiplied with its abundance। अभी उसका abundance कितना है कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमको ऑलरेडी पता है कि तीनों का एडिशन कितना होना जरूरी है, 100% होना जरूरी है। तो ये तो चलो हमारे पास है 78.99%, तो देखो 78.99 अपॉन 100, इसको ही हमने क्या बोल दिया 0.7899 बोल दिया, तो ये 0.7899 प्लस, ओके, इस सेकेंड वाले का अबंडेंस कितना है y है, करेक्ट, तो ये y सपोज है, प्लस z अगर बोल देंगे थर्ड वाले का जो भी है, तो वो इन तीनों का जो एडिशन है तो वो कितना रहने वाला है 1 रहने वाला है, क्योंकि 100 से तो ऑलरेडी हमने डिवाइड कर दिया, ये y और z जो है वो भी ऑलरेडी 100 से डिवाइड करने के बाद जो मिलते हैं वही है, तो इसलिए फिर z को कैसा लिख सकते हैं, z कैन बी रिटन एज 1 माइनस y माइनस 0.7899, करेक्ट है, ये लिख सकते हैं। तो z कैन बी एक्चुअली रिटर्न टू इक्वल टू ये 1 माइनस 0.7899 निकालो कितना आता है, तो ये देखो 1 minus 0.7899, so this is 0.7899, which happens to be 0.2101, okay, so this is 0.2101 minus y,
This is the abundance of the third magnesium here. So we can just replace it by that here. तो यहाँ पे into करेंगे तो 0.2101 minus y, and we have to find out this y here. Once we get y, we can just get z also using this formula. But यहाँ पे mass जो है, average mass जो है वो दिया हुआ है उन्होंने. ये देखो, average mass of the magnesium atom is given to be 24.312 right here. So this is here to 24.312, and that is going to be equal to, अब इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो फटाफट, देखो कितना आता है. So you can just work it out and say that it will be 23.9805. This is 23.9805. Okay, multiplied by 0.7899. 7899. Yes, it comes out to be 18.95. Just copy it down here. 18.95. Okay. Plus here it is 24.9858. This is 24.9858 multiplied with y. अच्छा, ये तो हमको y का वैल्यू पता ही नहीं है. So just keep it as it is. So this is 24.9858 into y plus, and this, just open this bracket here. So we can get this 25.9826 into 0.2101 minus, again this is 25.9826 into y. Okay, now just combine this with this here, so that you can just get this 24.312 kept as it is, which is equal to 18.95 kept as it is, plus इन दोनों में से अगर y कॉमन निकालेंगे ना, तो देखो अंदर क्या बचेगा. तो हम लिख सकते हैं 24.9858 minus 25.9826, that is multiplied by y. ओके, और ये जो बचा हुआ फैक्टर है वो भी एज इट इज रहेगा. ठीक है. सो फाइनली ओके, वे पहले हम निकाल के लेंगे ये कितना आता है. देखो 20, अच्छा पहले ये सब्ट्रैक्शन करो, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर दो, कितना आता है. तो देखो 24.9858 माइनस 25.9826. okay, 9826 which comes out to be minus 0.9968. okay, तो यहाँ पे माइनस 0.9968 तो आने वाला है, इंटू वाई भी आने वाला है, नो डाउट. बट अभी इसको हम लिखेंगे, ये वर्कआउट करेंगे. अभी देखो ये जो प्रोडक्ट है ये वर्कआउट करेंगे, कितना आता है देखो ठीक से. तो इट कम्स आउट टू बी 25.9826. दिस इज 9826 multiplied by 0.2101. so this is 0.2101. okay, so it comes out to be 5.4589. okay, so this will be copied as it is here. So it will be plus 5.4589. okay, and this is to be kept as it is. okay, and one more thing, this has to be added with this number here, correct है. when you get ये इसको प्लस करेंगे 18.95 जो यहाँ पे है. so you can say this will be 18.95 which comes out to be 24.40. okay, so इन दोनों का एडिशन हमको मिल गया, ये बन गया 24.4089 minus this whole thing
and this should be equal to 24.312. Okay, and then we can just shuffle. This is to be kept in this side and this will be shuffled to that side. Okay, so that we get this 0.9968 into y kept here, which is going to be 24.4089 minus 24.312 in this side. तो y हमको क्या मिलेगा, this difference divided by 0.9968 actually, so that we can get this 24 point, अच्छा ये तो ऑलरेडी मिला हुआ है, उसमें से हमको सब्ट्रैक्ट करना है 24.312 बस. So this is 24.312 which comes out to be 0.09694, and that is to be divided by 0.9968. Okay, so this is 0.9968, which happens to be 0.0972. okay, that means this is going to be the abundance, but if you want to write it in percentages, then it will be actually 9.72 upon 100, which can also be written as 9.72%, right? And once we get this abundance of this y, z can easily found out by using the formula जो हमने अभी भी डिराइव किया था, z is equal to, क्योंकि ये तीनों का परसेंटेज का सम कितना होता है, 100 होता है कि नहीं, तो इसलिए z will be actually equal to, देखो 9.72% ये हमको y मिला, और ये जो पहला वाला जो मैग्नीशियम है वो ऑलरेडी 78.99% है, तो z कितना होगा, 100 माइनस 78.99 और माइनस 9.72 also. Just solve this. That means you have to add this 78.99 and 9.72 and combined together we have to subtract this from 100. तो उसमें से 100 माइनस कर दो तो नेगेटिव आंसर आ जाएगा, उसमें से नेगेटिव साइन हटा दो, 11.29% will be z. तो z का कितना आया परसेंटेज, 11.3 approximately percent. That's it, which is going to be the answer. See here, 9.3% and 11.7%. चलो उतना थोड़ा डिफरेंस चलेगा, क्योंकि उन्होंने 6 डिजिट तक एक्चुअली दिया हुआ है, और उतना बड़ा लॉक टेबल तो हमारे पास है नहीं 6 डिजिट का, तो इसलिए हमको 4 डिजिट्स लेके ही करना पड़ेगा. सो थोड़ा बहुत एरर एक्सपेक्टेड है. ओके, चलो ठीक है. सो लेट अस स्टॉप दिस लेक्चर हियर, and this chapter has been declared to be officially finished along with the numericals. So next time, मतलब कल हम AC current start करेंगे. Okay, thank you all of you.